Students, how are you all? Ready for new worksheet number 48, and we have a new topic also, collection of data. Although you have an idea about this because you have been learning about it since class 6, class 7, class 8, and now this is class 9. Children, you must have observed your class teacher recording the attendance of students in your class every day, or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. One such board is illustrated here. Name of the bowler ABCD, overs. Over taken by the bowler A is 10, maiden given by bowler A is 2, and runs given by bowler A is 40, and wickets taken by him is 3. Similarly here, all the records for team of bowler B, and all the records of bowler C, and all the records of bowler D. You know that in a game of cricket, the information recorded in scoreboard is not simply about who won and who lost. कौन जीता कौन हारा, इसके अलावा भी स्कोरबोर्ड में बहुत कुछ होता है. Some equally important informations are there about the game. For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer. Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. These facts or figures, which are numerical or otherwise collected with a definite purpose, are called the data. So this is the definition for data. Data किसे कहते हैं? Data is a collection of numbers gathered for some information. वो numbers का समूह जो हम किसी purpose से, किसी information के purpose से हम उसको collect कर रहे हैं. The extract of meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics. This statistic is that branch of mathematics जहाँ पर हम ये सारी information को collectively gather करते हैं और उसको study करते हैं. जैसे आपने branch of different branches आपने करी हैं, geometry आपने करा है, Euclids आपने पढ़े हैं, आपने algebra पढ़ा है, you have mensuration, trigonometry, all these are different branches of mathematics. नंबर सिस्टम. सो ये स्टैटिस्टिक भी वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में, आंकड़ों के बारे में, डाटास के बारे में स्टडी करते हो. In your day-to-day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, names, etc. These tables provide us data. Let us do some activity to improve our understanding about collection of data. Here, an activity is given to you. Construct a table by collecting the height of any 20 students of your class. Okay, now you are not meeting your class students. You can collect information from 20 any from your gathering, from your पड़ोस also, from your neighborhood also. आप 20 किन्हीं बच्चों के हाइट नोट कर सकते हो. हाइट आपको एक ही उसमें लेना है, सेंटीमीटर्स में ही. फीट, इंचेस, मीटर्स तो चलेगा नहीं. आप उसमें लेते हो तो वो अलग मुश्किल हो जाता है. तो हाइट को हम एक ही यूनिट में लेंगे, सेंटीमीटर्स में, ताकि ये जो डाटा कलेक्ट हो इससे हम एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकें. ओके. Activity 2 है construct a table by collecting the data of number of absentee during your online class in last 1 week. आपकी टीचर्स आपके ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, उसमें टीचर्स मार्क करती हैं आपकी अटेंडेंस को. तो कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं पिछले हफ्ते में, ये डाटा लेने के लिए आपको अपनी टीचर से बात करनी पड़ेगी, या कोई उन्होंने क्लास मॉनिटर अपॉइंट किया है जो इस इन्फॉर्मेशन को रखता हो, उससे बात करनी पड़ेगी. सो यू आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर पर्सन. यहाँ पर आप खुद कलेक्ट कर रहे हो. तो दो चीज़ों में फ़र्क है. In first activity, the information was collected by yourself with a definite objective in your mind. The data obtained in this way is called the primary data. ये data जो है ये primary data है. In second activity, you gather information from the available school record, which already had the information. तो जो टीचर के पास एक डाटा था, उनका प्राइमरी डाटा है, वो आप उनसे ले रहे हो, तो डाटा obtained in this way is called the secondary data. इसको हम secondary data कहेंगे. Got it? जैसे यहाँ पे हमारी कुछ कोई एक्सरसाइजेस हैं. यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. इसमें बहुत सारी डाटा आपकी हो सकती है. 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने पूछे हैं. जैसे यू कैन सी डिवीजन ऑफ 24 आवर्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हो. स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, स्टडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ऑल दीज एक्टिविटीज़. सो इस आप कैसे डिवाइड करते हो अपने 24 आवर्स को, कैसे आपका टाइम टेबल होता है घर का, ये आपका शो करेगा कि ये भी एक तरीके से कलेक्शन ऑफ डाटा हुआ. सेकेंड है डिफरेंट फूड आइटम्स मेड इन अ वीक. आप पूरे हफ्ते में नोट कर सकते हो कि आपके घर में क्या क्या फूड आइटम्स बने. मंडे को क्या क्या था,
ट्यूसडे को, ऐसे करके डिफरेंट पूरा एक वीक का निकाल सकते हो। मूवीज़ वॉच्ड इन ए ईयर, पिछले साल, इस पूरा साल में आपने कितनी मूवीज़ वॉच की हैं। तो आप इस साल को आप ये अब ये टेलीविज़न पे देखोगे, बिकॉज आप इसको स्पेसिफाइड कर सको कि थिएटर तो अभी ओपन हुए हैं, आप अपने टीवी पे आपने कितनी मूवीज़ वॉच करी अभी पिछले साल में, ये आप देख सकते हो। हाँ, ये तो आप इसको जैसे चाहो चेंज कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। मनी स्पेंट इन अ मंथ फॉर डिफरेंट थिंग्स, ये आपके पेरेंट्स हमेशा ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिफरेंट किन्हीं किन्हीं चीज़ों पर उनके कितने पैसे खर्च होते हैं, तो उसका पूरा वो बजट बना के रखते हैं, है ना। आपने टीवी पे भी बजट देखा है कि पूरे साल का एक एस्टिमेटेड बजट आता है गवर्नमेंट का फरवरी में, है ना। सो इसी तरीके से हम बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा के अकॉर्डिंगली ही हमारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अच्छा, अब जैसे आप ये देखिए, जो आप खुद कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डाटा हो गया, जब आप किसी और से ले रहे हैं दैट विल बी सेकेंडरी डाटा। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, क्लास 9 के 10 बच्चों का शू साइज आप कलेक्ट कर रहे हो, आप उनसे बात कर सकते हो, तो प्राइमरी डाटा रहेगा आपका। ब्लड ग्रुप्स ऑफ 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, अच्छा अब आप अपने फ्रेंड से पूछ के कर रहे हो तो प्राइमरी डाटा हो गया। और अगर आपकी टीचर ने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, 20 स्टूडेंट्स सबका ब्लड ग्रुप नोट कर रखा है और आप टीचर से ले रहे हो, तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। सो द आंसर वैरीज, यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। जब मेडिकल रिकॉर्ड अगर टीचर रखती हैं तो वहाँ पर वो ब्लड ग्रुप भी बच्चों का नोट करके रखती हैं। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट से इंक्वायर करके उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स है ये नोट करोगे तो ये प्राइमरी डाटा हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, या आप अपनी मैथ्स टीचर से पूछ सकते हो कि भाई कैसे मार्क्स मिले 30 स्टूडेंट्स को, आप उसका जब डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा हो गया, बिकॉज यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, क्लास टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव, वन महोत्सव में 100 स्कूलों ने कितने प्लांट्स करे, तो यहाँ पर और भी बड़ा डाटा हो गया, क्योंकि आप अपने स्कूल्स के लिए भी आप पूछोगे किसी से, ऐसे 100 स्कूल्स का आपने कलेक्शन करना है। सो दिस इज श्योरली अ सेकेंडरी डाटा। Okay, so there is a cab message for you. Maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. Do these work बच्चों, and take care of all these things, that you should wash your hands regularly, maintain a safe distance, and wear mask when you go outside. Okay, do these works in your copies, and please like the videos and share the videos among your friends. We'll meet again in the next worksheet discussion. Till then, take care and enjoy your festivals. Bye bye.